Hello everyone. As you know that I am doing Indian Polity by M. Lakshmikant. Uh, I have already completed chapter number 2. This is chapter 3 and this lecture will be the part 4 of chapter 3, and this is nothing but silent features of the constitution. Okay. If you have not watched the previous videos, especially from the Indian Polity, please watch those videos as well. As I have already mentioned that I am completing this M. Lakshmikant complete book I am doing, and I have already mentioned that I am not going to miss a single tax which is given in the book. So if you are watching this, I can damn sure no need to read the book. But still, if you want to read, you can read that. But if you are watching this, actually not required to read the book. Okay. Because it's a very lengthy book, reading again and again is like waste of time. Okay, so suppose if you're watching this, you can increase the speed of video. I mean from the YouTube, you have the option. If you're feeling that my voice is a little bit slower, it is not slower. Okay, because I'm trying to make point clear so that you should understand in a better way. Anyway, these things not much required of telling again and again. I already mentioned many times, since these are the initial chapters, so I'm saying as the lectures increases, I will not repeat these things again and again. Okay, this is for them, those who are watching first time. Okay, anyway, this is about myself. So let's see, let's start today's lecture, which is part 4 of chapter 3. Okay, fine. So till that already we have seen the 10 silent features of Indian Constitution. This is the 11th one. Okay, just 1 second, I will choose the pointer. So let's see what is the 11th one. Is the a secular state. What is meaning of that? Here something is written: the Constitution of India stands फॉर अ सेकुलर स्टेट. देखिए सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब ये होता है कि अ कंट्री विच डोंट हैव एनी रिलीजन. ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान उसने बोला है कि वी आर द इस्लामिक स्टेट. ओके, बट इंडिया लाइक वी डोंट से वी आर हिंदू स्टेट और वी आर क्रिश्चियन स्टेट और वी आर अ मुस्लिम स्टेट. वी डोंट से लाइक दिस. ओके, सो दैट्स वाई इट्स अ सेकुलर स्टेट. लाइक और वी एक्चुअली वी फील इंडिया ऐसा मानता है कि जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देना. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर स्टेट. हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, हमारा इंडिया का कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिलीजन आई मीन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ओके, जैसे पाकिस्तान में है. सो पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया of the Indian state. Okay, the following provision of constitution reveal that secular character of the Indian state. Okay, see, the term secular was, अब देखिए इसमें क्या बोला, the following provisions of constitution reveal the secular character of the Indian state. अब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से बता रहा है कि हाउ द कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट एज अ सेकुलर. सो दिस थिंग दे आर ट्राइंग टू से विद दीज लाइन्स. सो ए पॉइंट सेज द टर्म सेकुलर वाज एडेड बाय प्रियम्बल टू द प्रियम्बल ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे सेकुलर वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, बट ये कहीं पे भी नहीं था. बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में. इस टाइम पे जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था. ओके, सो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि द इंडियन स्टेट हैज़ अ सेकुलर कैरेक्टर. सेकेंड, the preamble secure to all citizens of India liberty of belief, faith and worship. ठीक है, अब देखिए जो preamble अगर आप पढ़ोगे, with the people of India having solemnly resolved, okay,
पूरा मैं नहीं बोलूँगा, आई एम जस्ट टेलिंग लाइक दिस इज रिटन इन द प्रियम्बल। उसमें क्या बोला, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। देखिए अब हमारा प्रियम्बल ये बोलता है, सिक्योर करता है एक्चुअली में, कि जितने भी सिटीजन हैं ओके उनको लिबर्टी देता है बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, मतलब वो किसी भी वो भगवान की पूजा कर सकते हैं ओके, वो अल्लाह की पूजा कर सकते हैं, या फिर सिख हैं, या फिर नो क्रिश्चियन है, या एनी रिलीजन ओके, उनको इतनी लिबर्टी दी जाती है कि वो अपने बिलीफ के हिसाब से वो उनको जो भी अच्छा लगता है दे कैन फेथ एंड वर्शिप ओके। सो दिस इज ऑल्सो सोज द इंडियन स्टेट एज अ सेकुलर कैरेक्टर। नेक्स्ट, the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws। आर्टिकल 14 ठीक है। अब आर्टिकल 14 ये बोलता है द स्टेट shall not deny any person equality before law और equal protection of laws। ठीक है, तो ये भी एक तरह से जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको दिखाता है। नेक्स्ट, द स्टेट shall not discriminate any सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि कोई भी मतलब जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये आर्टिकल 15 बोलता है। इसमें सिर्फ रिलीजन नहीं है, रेस और भी चीज़ें हैं ओके। वंस विल सी द फंडामेंटल राइट्स देयर विल दिस थिंग विल रिपीट ओके। ई पॉइंट ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो रिलीजन की बेसिस पे ये नहीं बोला जाएगा नहीं तुमको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा, तुम इस रिलीजन के हो तो तुमको नहीं दिया जाएगा। नो, एवरी वन इज ट्रीट एज अ इक्वल ओके। और चीज़ें क्या है, एफ क्या बोलता है, ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट इन रिलीजन। ठीक है, सेम चीज़ है, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं। आर्टिकल 25 सीधा सीधा बोलता है कि ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट इन रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 26 सारे के सारे फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या बोलता है, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन shall have the right to manage its religious affair। ठीक है, ये आर्टिकल 26 बोलता है। कुछ भी इसमें बताना नहीं, जो आर्टिकल 26 का ये स्टेटमेंट ही है। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, अगर वो कोई पर्सन है वो अगर अपने पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करता है तो उसको किसी तरीके का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज नथिंग बट इज द आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 दिस ऑल आर फंडामेंटल राइट एज वेल। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय स्टेट। ठीक है, अब जो आर्टिकल 28 ये बोलता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं विच इज़ मेंटेन बाय स्टेट और यू कैन से बाय गवर्नमेंट, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ओके। आर्टिकल 29 सेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड और कल्चर। ठीक है, अब आर्टिकल 29 ये बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। ठीक है, जैसे कुछ होता है ना, आप ट्राइब्स के बारे में पढ़ते रहते हो, वो थोड़े से बचे हुए हैं तो उनको ऐसी राइट दी जाती है कि उनका ना पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है बोलने का, उनका एक रहन सहन खाने पीने का एक उनका कल्चर होता है। ठीक है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइब्स, वो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होता है तो उसको लैंग्वेज को स्क्रिप्ट को कल्चर को दे कैन कंजर्व ओके। सो दिस हैज़ बीन गिवन इन द आर्टिकल 29। अब मान लो कि ऐसा होता है कि हिंदू स्टेट है तो वो बोलता है नहीं अगर उनका कुछ
दूसरा रिलीजन है, तो जो स्टेट है वो फोर्स करके उस चीज़ को दबा सकता था, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। ओके, बिकॉज नाउ देर इज़ हिंदूज़ का पॉपुलेशन घटता जा रहा है कंटिन्यूसली, बहुत कम हो गया है, 2% से भी कम हो गया है। ठीक है, तो बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं? ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है, अब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर दे हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर ओन चॉइस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इज द आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 44। देखिए यहाँ तक तो फंडामेंटल राइट, एंड दिस इज डीपीएसपी। हमारे डीपीएसपी में भी इस चीज़ की बात कही गई है, विच इज़ नथिंग बट आई मीन सेकुलर कैरेक्टर की बात कही गई है, विच इज़ नथिंग बट द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो अब ये डीपीएसपी में बोला गया है कि जो स्टेट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, वो दे हैज़ टू इंडेवर टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, that is nothing but is the article 44. So these all says the secular character of Indian state. और चीज़ें क्या बोल रहे हैं? The Western concept of secularism. अब देखिए, जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे, those all were Indian character of secular state, but Western जो कंट्रीज है उनका सेकुलर का मीनिंग अलग है, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। What is that? The Western concept of secularism cannot a complete separation between the religion, the church and the state and the politics. ठीक है, वेस्टर्न में अलग है, उसमें यू नो वो सेपरेट नहीं करते हैं, वो चाहे वो चर्च हो चाहे पॉलिटिक्स हो, दे ऑल आर टुगेदर। तो यू कैन सी दैट इंडिया में एकदम अलग है, वेस्टर्न में एकदम अलग है। दिस निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, अब ये इसको निगेटिव हम लोग बोलते हैं, दिस निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इन एप्लीकेबल इन इंडियन सिचुएशन। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है, वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये होने का एक रीज़न ये भी है कि वो उसमें मोस्ट ऑफ क्रिश्चियन है, जो पॉलिटिक्स में है वो भी क्रिश्चियन है, तो उसमें उतना मल्टी रिलीजन नहीं है। जो दूसरे कंट्री से जाके वहाँ पे लोग हैं वो कुछ बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, बट इंडिया में नहीं है ऐसा, इट्स अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। ओके, हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, चूँकि हमारा मल्टी रिलीजियस है, तो इस वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है सेकुलरिज्म का, दैट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन स्टेट है वो इक्वली रिस्पेक्ट करता है ऑल द रिलीजन को और इक्वली प्रोटेक्ट भी करता है ऑल द रिलीजन को। ठीक है, तो हमारा जो है दिस इज पॉजिटिव काइंड ऑफ सेकुलरिज्म, इनका वेस्टर्न साइड का जो होता है एकदम निगेटिव होता है। ओके, these two are different. So I think you got the idea of what is negative kind of secularism, what is positive kind of secularism. Western side में जो भी secularism है that is negative secularism, but in India it is positive secularism. Okay. Moreover, the constitution has also abolished the old system of communal representation, that is reservation of seat in the legislature on the basis of religion. ठीक है, अब देखिए इससे पिछले क्लासेस अगर आप देखोगे तो उसमें मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिफॉर्म हम लोगों ने देखा था। ओके, फिर अब इससे पहले भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी कि जो अंग्रेज थे उन लोगों ने क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेके आया हुआ था। ठीक है, जिसमें वो बेस्ड ऑन रिलीजन वो दे हैव गिवन द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो वो जो ओल्ड हमारा जो सिस्टम था कम्युनल उसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी नाम दिया गया था। ठीक है, जिसे पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस चीज़ को।
तो उसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया, ठीक है, दैट इज एबॉलिश्ड, ठीक है. However, it provides for the temporary reservation of seat for the scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation on to them, ठीक है. और इसको हटा के और टेम्परेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट फॉर SCs एंड STs हमारे लेजिस्लेचर में दिया गया है, विद इट इज़ लोकसभा और विद इट इज़ स्टेट असेंबलीज, उसमें दिया गया सो दैट उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट हो जाए at the time passes. Okay, so till that we have seen the secular kind of, secular feature of Indian Constitution. Now the 12th feature is universal adult franchise. Okay, this is also one of the salient feature of Indian Constitution. We'll see this. The Indian Constitution adopt universal adult franchise on the basis of election to the Lok Sabha and the state assemblies, ठीक है. अब जो हमारे, आपको पता है जो हमारा चुनाव होता है, whether it is लोक सभा का चुनाव हो या स्टेट असेंबलीज का चुनाव हो या इलेक्शन हो, इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो जो लोग भी 18 के ऊपर हैं दे कैन वोट. ओके, सो अंग्रेजों का टाइम ऐसा नहीं था, उसमें जो एलिट क्लास, जो एजुकेटेड क्लास था, पैसे वाले थे, उन लोगों को ही सिर्फ वोटिंग करने की राइट थी. बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा किया गया कि दिस हैज़ बिन गिवन टू एवरीवन. दोज हुज एज इज अबव 18 दे कैन वोट इन द लोक सभा एंड राज्यसभा, नॉट राज्यसभा, इन द लोक सभा एंड इन द स्टेट असेंबलीज. ओके, next, every citizen who is not less than 18, I already mentioned that, of the age has the right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on, ठीक है. तो जो भी 18 साल के ऊपर है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सेक्स हो, किसी भी सेक्स का हो, लिटरेट हो या ना हो, वेल्दी हो या ना हो, everyone can vote. Okay, and the value of vote everyone is the equal. अब अंबानी वोट डाल रहे हैं, उनका भी वही उतनी ही वैल्यू है जितना कि एक लेबर क्लास डाल रहा है. ओके, सो दिस हैज़ गिवन द इक्वल पावर टू द एवरीवन. ओके, इज़ नॉट लाइक अंबानी इज रिचर सो उनके वोट की वैल्यू 100 वोट के बराबर है. नो, वो भी एक ही वोट डालेंगे और एक जो उनके घर प्यून होगा, प्यून नहीं, जो भी कुक होगा वो भी डालेगा, तो भी उसका भी उतना ही, उसके भी वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी अंबानी के वोट की वैल्यू, ठीक है. नेक्स्ट, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर फ्रॉम द 21 ईयर इन 1989 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक्चुअली में 18 नहीं था, इट वाज 21 ईयर. यहाँ पे मैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा था, ठीक है. बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो भी 21 या 21 साल से ऊपर वाले थे वो वोट कर सकते थे. बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ इन 1988, फिर इसमें 21 ईयर को घटा के 18 ईयर कर दिया गया था. ओके, जस्ट कीप इन माइंड. सो यू कैन रिमेंबर दिस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि स्टेट PSCs में पूछ सकता है कि ये कब हुआ था. इवन आई हैव सीन दिस क्वेश्चन व्हेन दिस हैज़ बीन डन. Okay, the introduction of universal adult franchise by the constitution maker was a bold experiment and highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and overwhelming illiteracy. ठीक है, ऐसा कुछ इसमें हाई-फाई नहीं लिखा हुआ है. I mean, they say that जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बना रहे थे तो I mean giving this like universal adult franchise was the bold decision because our country is very big, high poverty, I mean social inequality. इसके बाद भी they have given this. Okay, अंग्रेजों के ज़माने के हिसाब से नहीं था कि जो लोग रिच हैं, जो पढ़े लिखे हैं,
जिनके पास ज़्यादा पैसा है, दे विल ओनली वोट. नो, दे हैव गिवन दिस राइट टू एवरीवन, लीगल राइट, यू कैन से दैट. इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. कोई वोट डाल नहीं जाता है तो कुछ नहीं होता, बट या वी हैव टू वोट एक्चुअली. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन broad based. Okay, democracy broad based, enhances the self respect and prestige of common people, uphold the principle of equality, enable minority to protect their interest and open up new hope and vista for weaker sections. देखिए, अब ये इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो हमारा यूनिवर्सल, इसका देखिए काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग है. मतलब अगर मैं इसको बताने चलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आई विल टेल यू इन वेरी सिंपल वे. लाइक इसको देने का मतलब क्या है कि अब जैसे मान लो इसको दिया, इसका मतलब क्या है कि सबको दे दिया. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था अंबानी वाला और उनके घर को वाला. तो एकदम इवन जो कॉमन पीपल सबको ये देने से क्या होता है कि इट शोज द अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. हर कोई एकदम बराबर लेवल में खड़ा हो गया. वोट डालने जाएगा तो ऐसा नहीं कि अंबानी जो है हेलीकॉप्टर से आकर वोट डालेंगे. अगर किसी प्राइमरी स्कूल में वोटिंग पड़ रही है तो ही हैज़ टू ऑल ही और हिज फैमिली ऑल्सो हैज़ टू बी इन क्यू एंड देन ही हैज़ टू वोट. ओके, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप क्लास 6 के NCERT पढ़ोगे तो इसके बारे में दिया हुआ है. ओके, कि एक लेबरर है, एक बिजनेसमैन है, एक सब लोग लाइन में लगे हुए हैं नो, एक प्रिंसिपल है, एक पॉलिटिशियन, एवरीवन इज इन द क्यू फॉर वोटिंग. ठीक है, तो उसमें ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि वो क्यों यहाँ पे आए हुए हैं, दे आर वेरी रिच. ओके, क्लास 6 के पहले चैप्टर में दिया, आई हैव रेड दैट. ठीक है, उसमें वहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया गया. सो दिस इज नथिंग बट दिस शोज लाइक पहले तो डेमोक्रेसी ब्रॉड में कि हम वी विल इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबलीज. और अब देखिए इसमें जो भी माइनॉरिटी, इनेबल माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन अप न्यू होप एंड विस्तास फॉर वीकर सेक्शन. अब जैसे मान लो कि कोई एक शहर है या कुछ भी, वहाँ पे मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. ठीक है, उन्हें लगता है कि दिस पर्सन इज़ गुड एंड ही और सी कैन डू वेरी गुड थिंग फॉर अस इफ़ वी कैन इलेक्ट ही और सी इन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज. सो they can, I mean, with the power of their universal adult franchise, they can vote to he or she and they can elect. And this is actually happening for every every MPs and most of MP or MLAs, how they are coming based on this only. Okay, so the people people can choose as per their own interest, okay, to protect their or you can say whatever they want. I mean, I'm not talking about corruption. Or suppose they want to improve their living. I mean, I will not say style. Let's say पानी की problem है या फिर road की problem है या whatever problem they have, how it will solve? Obviously by the local people. A person who is in Delhi, they can send money to the state, but who has to do that? The local person has to do that. Okay, I hope you can get what I'm trying to say there. Okay, so जो भी weaker section है, with the help of this universal adult franchise, they can actually improve their life by choosing a person as per their own interest. Okay, so that's why this is a very 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 important thing. Okay, so that's what I was saying, that like if I will start speaking about this, it will take I will expend one hour and meaning will be nothing. Okay, so I try to explain little bit, but the thing is that this was actually very bold decision, and this actually helps the principle of equality. Okay, to everyone. Okay, now the 13th salient feature is nothing but is the single citizenship.
ओके, इससे पहले वाले लेक्चर्स में वी हैव सीन मेनी टाइम्स, ओके, बट अगेन हियर इज कमिंग, विल सी अगेन. So what is single citizenship? Though the Indian constitution is federal and envisages or dual polity, center and state, it provides for only a single citizenship. This is the Indian citizenship. In a country like USA, on the other hand, each person is not only a citizen of USA, but also a citizen of particular state to which he belongs. Thus, he owes allegiance to okay, to both and enjoy dual set of right, one conferred by the national government and another by the state government. अब देखिए, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, इंडिया में क्या है, जैसे वी एज ए इंडियन मान लेते हैं कि मैं एमपी में रहता हूँ, ठीक है, एंड आई एम इंडियन, तो आई विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई एम द सिटीजन ऑफ एमपी, और इफ आई एम फ्रॉम यूपी आई कैन नॉट से दैट आई एम द सिटीजन ऑफ यूपी. इफ आई एम फ्रॉम बिहार I cannot say that I am the citizen of Bihar. Yeah, my state is Bihar, or my state is UP, or my state is Kerala, okay, or my state is Tamil Nadu, but I am the citizen of India. So every Indian has single citizenship, that is Indian citizenship. Fine. अब USA में क्या है, USA में मान लेते हैं कि एक कैलिफोर्निया स्टेट है, एक टेक्सास स्टेट है. कोई बंदा कैलिफोर्निया में पैदा हुआ, उसके माँ बाप कैलिफोर्निया में रहते हैं, ठीक है, तो वो बंदा कैलिफोर्नियन सिटीजन होगा, ठीक है, पहली चीज़. दूसरा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब वो बंदा जो है यूएसए का भी सिटीजन होगा. बात समझिएगा, ठीक है. एक उनकी नेशनल गवर्नमेंट है जो प्रेसिडेंट होता है, एक उनकी स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसका गवर्नर होता है एट द स्टेट लेवल. तो वो जो पर्सन है उसकी दो सिटीजनशिप है, एक तो कैलिफोर्निया का, दूसरा यूएसए का. दिस इज कॉल्ड डुअल सिटीजनशिप. अगर जैसे मान लो कैलिफोर्निया का बंदा टेक्सास में परमानेंट सेटल होता है, तो उसको सब कुछ अपना चेंज करना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ उसको टेक्सास का लेना पड़ेगा. हमारे साथ ऐसा नहीं है. मान लेते हैं कि मैं यूपी का हूँ, तो मेरा यूपी का लाइसेंस है या मेरा आधार कार्ड है, मैं अगर महाराष्ट्र में इस समय हूँ तो वो सब चलेगा यहाँ पे. ऐसा नहीं कि मुझे वो सब डेट, वो सब एड्रेस बदलना है, नहीं, कुछ नहीं करना है मुझे. बट यूएस क्यों? क्योंकि आई एम द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, आई हैव द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया. तो मैं पूरे स्टेट में कहीं, पूरे इंडिया में कहीं जाता हूँ, दोज थिंग विल बी कॉमन. बट यूएस में ऐसा नहीं है, दे हैव डुअल सिटीजनशिप, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट. इसमें वही चीज़ पूरा का पूरा बताया है, ठीक है. Next, in India, all citizens, irrespective of state in which they are born or reside, enjoy the same political or civil right of citizenship all over the country, and no discrimination is made between them, excepting a few cases like tribal area, Jammu and Kashmir and so on. ठीक है, जो मैंने इससे पहले बताया वही बोल रहे कि आप किसी भी स्टेट के हो, आपकी जो भी सिविल और पॉलिटिकल राइट है, कहीं पे भी रहो, इट विल बी द सेम, ओके, एक्सेप्ट सम ऑफ द लाइक ट्राइबल एरिया एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ट्राइबल्स का उनका कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में और जम्मू एंड कश्मीर में दी हुई है. अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी वो सब सारी चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि 370 हट गया है. तो नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कम्प्लीटली एप्लीकेबल इन हियर. सो दिस इज सिंस ओल्ड एडिशन, सो दैट्स व्हाई जम्मू एंड कश्मीर इज मेंशन. अगर आप नया एडिशन पढ़ोगे तो जम्मू एंड कश्मीर हट जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, बट जनरली नहीं किया जाता है. ओके, आप कहीं पे भी आओ जाओ या किसी भी स्टेट के हो, इट विल नॉट डन. ओके, आई मीन डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट डन बेस्ड ऑन, ओके, बेस्ड ऑन लाइक विच स्टेट यू बिलोंग. कई बार ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता बार बार बताने की ज़रूरत है. अभी सिटीजनशिप चैप्टर भी अलग से आएगा, ठीक है, आगे. So we'll see in more detail. Despite the constitutional provision
for a single citizenship and uniform rights for all the people, India has been witnessing the communal rights, class conflict, caste war, linguistic classes, and ethnic dispute. This means that the cherished goal of constitution maker to build an united and integrated India nation has not been fully realized. देखिए इसमें इवन दो इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर रहा है कि इवन दो दे हैव प्रोवाइडेड द सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट्स टू ऑल द सिटीजन, बट इंडिया हैज़ विटनेस्ड कि अगर फ्यूचर पास्ट में देखोगे तो देयर इज नो कम्युनल राइट, क्लास ऑफ कन्फ्लिक्ट, कास्ट वॉर, ठीक है, लिंग्विस्टिक क्लासेस, एथनिक डिस्प्यूट, ये सब पास्ट में काफ़ी हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का जो उनका गोल था टू बिल्ड यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडिया, वो कम्प्लीटली इज़ नॉट रियलाइज्ड। ओके, उनको ऐसा लगा कि अगर हम ऐसे सिंगल सिटीजनशिप करेंगे तो जो ब्रदरहुड वाली फीलिंग रहेगी, बट इट वाज एक्चुअली नॉट देयर। हम ऐसा नहीं कि है नहीं, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें होता है, तो इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि दिस हैज़ बीन नॉट रियलाइज्ड। ओके, बट वी कैन नॉट जनरलाइज दिस टू एवरीवेयर। थोड़ा सा जहाँ पे हुआ है सिर्फ उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 4 ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ chapter 3, silent feature of Indian constitution. I will see how many more parts is required for completing this chapter. Okay, thank you for watching. Bye bye.